নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ত্ৰিপুৰাত নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আম্বাসাদ জনসভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ইয়াৰ পিছতে ভাগিনীটো নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাষণ দিব মোদীয়ে 16 ফেব্ৰুৱাৰী ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচন ত্ৰিপুৰা পুনৰ দখলৰ বাবে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে এইবাৰ বিজেপিয়ে অমিত শাহ ৰাজনাথ সিং জেপি নাড্ডা যোগী আদিত্যনাথৰ পিছত এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী उनको मैं आग्रह करता हूं जनजाति जी के प्रेरणा कर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं हमारे अम्बासा विधानसभा के माता उषा कन्या देवर्मा जी जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और जनजाति पगड़ी पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोड़े करो ताली दें। अब मैं धलाई जिला के अध्यक्ष श्री परिमल देवर्मा जी और आसाराम बारी के प्रत्याशी श्रीमती जयंती देवर्मा जी से आग्रह करता हूं कि जनजाति काला चित्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं हमारे धलाई जिला के अध्यक्ष श्री परिमल देवर्मा जी और आसाराम बारी के प्रत्याशी श्रीमती जयंती देवर्मा जी को आग्रह करता हूं कि जनजाति काला चित्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी का स्वागत करें। अब मैं अपने राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना उद्घाटन करें। সবাইকে নমস্কার। খুলুমখা হামবাই। আজ আমরা সত্যি আনন্দিত যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে
এখানে যে বিজয় সংকল্প যে র্যালি, সেই র্যালিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে আমাদের মধ্যে আছেন। উনাকে আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে এখানে স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের যে ইস্ট পূর্ব আসনের মাননীয় পৰৱৰ্তী খবৰলৈ মহানগৰী জালুকবাৰীত অঘটন নিৰ্মীমান অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে এজন শ্ৰমিকৰ স্বস্তিক সমৃদ্ধি নামৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ অৱস্থাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নিহত শ্ৰমিকজন হৈছে বৰপেটাৰ সানিদুল আলী নিৰ্মীমান অট্টালিকাটোৰ 8 নম্বৰ মহলাৰ পৰা পৰি পৰে শ্ৰমিকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো 8 নম্বৰ ফ্ল'ৰৰ পৰা 8 নম্বৰ মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে এজন শ্ৰমিকৰ আছিল বিল্ডিংত প্লাষ্টাৰ কৰি আছে প্লাষ্টাৰ কৰি আছিল কোনখিনিৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা কি নাম কোৰ লৰা হয় এইটো বৰপেটা ল'ৰা হয় বৰপেটা এটা কাম কৰি আছিল আচ্ছা তাৰপিছত হেৰি কিয় ক'ত আছে লৈ গৈছে ভাঙা ঘৰ দুখাইছে না মৰিছে আচ্ছা বেল্ট লগাইছিল নেকি বেল লগা নাই বেল্ট লগোৱা নাই তোমালোকে কৰিছা মানে কি ভাঙি ভাড়া ভাঙি কৰিছে মানে জখলা সেফটি বেল নাছিলে সেফটি বেল নাছিল দিয়া নাই তোমালোকৰ কাম কৰাৰ সময়ত সেফটি বেল দিয়া নাই পুলিচ আহিছে নে এতিয়া আহিছে কালি এইটো ঠিকাটো কাৰ এইটো মালিক কোন মালিকৰ নাম মালিকটোৰ নাম নাজানো ঠিকাদাৰৰ নাম তোমালোকৰ মহলদাৰ তোমাৰ ঠিকাদাৰ কোন আছে দেখা হা ইছুব মহানগৰী খ্ৰীষ্টান বস্তিত অগ্নিকাণ্ড সিলভাৰ স্কয়াৰ পাৰ্কিঙত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত এখন বাহন ভস্মীভূত হৈছে বাহনখন মেৰামতি কৰি থাকোতে জুইৰ সূত্ৰপাত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই সিলভাৰ স্কয়াৰ পাৰ্কিঙত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে জিএছ ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বাহনখন মেৰামতি কৰি থাকোতে জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুই খ্ৰীষ্টান বস্তিত এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈ পৰিছে বাহনখন মেৰামতি কৰি আছিল আৰু তেনে সময়তে অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় আৰু পিছত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতলৈ পুনৰ আনিব 12টা চিতা 7টা মতা আৰু 5টা মাইকী চিতা আনিব ভাৰতলৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আনিব চিতাকেটা 18 এপ্ৰিলত ভাৰত পাবহি এই চিতাকেটা ইয়াৰ পূৰ্বে 8টা চিতা আনিছিল ভাৰতলৈ নামবিয়াৰ পৰা আনিব এই চিতাকেটা ভাৰতলৈ পুনৰ 12টা চিতা আনিব মধ্যপ্ৰদেশৰ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আনিব এই চিতাকেটা 18 এপ্ৰিলত ভাৰত পাবহি এই চিতাকেটা ইয়াৰ পূৰ্বে আনিছিল 8টা আৰু এবাৰ আনিব 12টা চিতা খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগত এটা সৰু বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াত 5.7 নিযুত টনৰ সৈতে আছে তৃতীয় স্থানত ইয়াৰ উপৰিও আৰ্জেণ্টিনা পৰ্তুগাল আমেৰিকা আৰু চীন দেশতো লিথিয়াম পোৱা যায়
বিশ্বৰ ক'ত ক'ত পোৱা যায় লিথিয়াম বিশ্বত 22 নিযুত টন শোধনযোগ্য লিথিয়াম পোৱা যায় ইয়াৰে 9.2 নিযুত লিথিয়াম ভাণ্ডাৰৰ সৈতে শীৰ্ষত আছে চিলি ইয়াৰ পিছত এতিয়া দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াত 5.7 নিযুত টনৰ সৈতে তৃতীয় স্থানত আছে ইয়াৰ উপৰিও আৰ্জেণ্টিনা পৰ্তুগাল আমেৰিকা আৰু চীন দেশতো লিথিয়াম পোৱা যায় ক'ত ক'ত লিথিয়ামৰ গুৰুত্ব বৈদ্যুতিক বাহনৰ বেটাৰীত গুৰুত্ব আছে মোবাইল ফোনৰ বেটাৰী ৰিচাৰ্জেবল সকলো বেটাৰী ৰিচাৰ্জ কৰা হয় সকলো বেটাৰী ঘড়ী কেমেৰা লেপটপৰ বেটাৰী ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী বেটাৰী কাঁচ আৰু চেৰামিকৰ সামগ্ৰীটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় লিথিয়াম তাপ প্ৰতিৰোধী গ্ৰীজ আৰু লুব্ৰিকেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু মনোৰোগৰ বিভিন্ন ঔষধতো ব্যৱহাৰ হয় লিথিয়াম ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ত্ৰিপুৰাত নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আম্বাসাদ জনসভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াৰ পিছতে ভাগিনীটো নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাষণ দিব মোদীয়ে एक ही नारा है एक ही जय घोष है फिर एक बार 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 डबल इंजन सरकार का ये मंत्र भाइयों और बहनों आज मैं त्रिपुरा की संतान विजनरी नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी उनको भी आदरपूर्वक याद कर रहा हूं हम सब उन्हें एनसीदा के नाम से बुलाते थे त्रिपुरा के विकास को लेकर अक्सर मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का अवसर मिलता था आज एनसीदा हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें हम सभी के बीच है और आने वाले समय में भी हमें प्रेरणा देती रहेगी मुझे संतोष है कि देश ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए इस वर्ष उन्हें भारत का बहुमूल्य ऐसा पद्मश्री का सम्मान दिया यह हमारा सौभाग्य है श्री विक्रम बहादुर जमातिया जी को भी पद्मश्री देकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का गौरव बढ़ा है भाजपा सरकार ने कोशिश की है कि त्रिपुरा और राष्ट्र के विकास में जनजातीय समाज के योगदान को पूरा देश देखे पूरा देश जाने भाइयों और बहनों दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है आज आप देखिए त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या
त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी। उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, और अगर किसी ने अपने घर पे झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। आज भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। साथियों, पहले त्रिपुरा में जीवन के हर बात में एक शब्द सुनाई देता था, चंदा। कुछ भी हो, चंदा। गाड़ी लाए, चंदा। घर बना रहे हो, चंदा। दुकान खोल रहे हो, चंदा। इन लोगों ने तीन दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। पहले त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को पुराने आधार पर ही वेतन मिला करता था। भाजपा सरकार त्रिपुरा में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। पहले त्रिपुरा में सिर्फ वामपंथी काडर को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अब भाजपा सरकार में त्रिपुरा के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले त्रिपुरा में लोग पुलिस थाने तक मुश्किल से पहुंच पाते थे। पहुंचने के पहले भी चंदा देना पड़ता था, पहुंचने के बाद भी चंदा देना पड़ता था। थानों पर भी सीपीएम कैडर का ही कब्जा था। अब भाजपा के शासन में त्रिपुरा में कानून का राज स्थापित हुआ है। साथियों, आप याद करिए, हिंसा के उस दौर में महिलाओं पर, हमारी बहनों, हमारी बेटियों पर कितने अत्याचार हुए थे। लेकिन आज त्रिपुरा में महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं का जीवन आसान बनाने वाले काम हो रहे। अभी मेरे त्रिपुरा के एक मां ने आकर के मुझे पगड़ी पहनाई। सिर्फ पगड़ी पहनाई नहीं, बहुत ही एक बेटे को जैसे आशीर्वाद दे, उस मां ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। मुझे खुशी है इस चुनाव में यहां से हमारी एक युवा बेटी ही भाजपा की उम्मीदवार है। साथियों, पहले की सरकारों के दौर में ढलाई भारत के सबसे पिछड़े जिलों में एक था। लेकिन डबल इंजन सरकार ने ढलाई को आकांक्षी जिला घोषित किया और विकास के हर पहलू पर ध्यान दिया। इसका परिणाम यह है कि आज ढलाई देश के 110 आकांक्षी जिलों में
दूसरे स्थान पर आ चुका है, दूसरे स्थान पर। ये बहुत बड़ा काम है। मैं सरकार को, सभी अफसरों को ढलाई के लोगों की इतनी बड़ी सेवा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज ढलाई के साथ ही पूरे त्रिपुरा में विकास के हर पैमाने पर प्रगति दिखाई दे रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी की सराहना करूंगा, जितने बहुत मंथन करके यहां के गांव-गांव जाकर के लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या कहना चाहते हैं, हर किसी से सुझाव लेकर के एक सशक्त संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र साबित करता है कि भाजपा जो कहती है वो वही होता है जो आप चाहते हैं, और भाजपा वही करती है जो आपकी प्राथमिकता होती है, आपकी जरूरत होती है। त्रिपुरा के गरीबों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे विशाल जनजातीय समुदाय के लिए, यहां की कनेक्टिविटी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए लक्ष्य तय किए और भाजपा ने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में नए लक्ष्य के साथ नए कदम का फैसला लिया है। मैं हमारे मित्र और यहां के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माणिक साह जी, प्रदेश भाजपा के सभी साथियों को भी इतना बढ़िया संकल्प पत्र देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। त्रिपुरा के लोगों को याद रखना है, 16 फरवरी को आपका एक एक वोट भाजपा और उसके सहयोगी दलों को ही देना है। आपके एक वोट की शक्ति से ही त्रिपुरा वामपंथियों के कुशासन से मुक्त हुआ है। अब आपका एक वोट ही डबल इंजन की सरकार की वापसी कराएगा, वामपंथियों को सरकार से दूर रखेगा। साथियों, 5 साल पहले जब मैं त्रिपुरा आया था तो आपसे हीरा, HIRA, हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे का वादा किया था। त्रिपुरा के विकास को हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे से सशक्त करने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने दिन रात काम किया है। त्रिपुरा में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी करने का काम तेज गति से चल रहा है। चुराईबारी वहां से लेकर के अगरतला नेशनल हाईवे भी 2 लेन से 4 लेन का हो गया है। त्रिपुरा में गांवों को जोड़ने के लिए बीते वर्षों में 5000 किलोमीटर के करीब नई सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले साल जनवरी में अगरतला को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने के अवसर पर मैं आप सबके बीच भी आया था। आज जो कोई अगरतला एयरपोर्ट आता है तो उसकी भव्यता देखकर वो हैरान रह जाता है।
त्रिपुरा में गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने और मोबाइल टावर के द्वारा 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने के प्रयास जारी है। पिछले 8 वर्षों में त्रिपुरा में 3 गुने से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा चुके हैं। साथियों, कनेक्टिविटी का ये विस्तार सिर्फ त्रिपुरा के भीतर ही नहीं हो रहा, बल्कि आज त्रिपुरा अभूतपूर्व तरीके से दुनिया से कनेक्ट कर रहा है। अब मेरा त्रिपुरा ग्लोबल बन रहा है, ग्लोबल। हम त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए वाटरवेज को भी विकसित कर रहे हैं। बांग्लादेश और भूटान के साथ साथ नदियों के रास्ते पहले से व्यापार हो रहा है। बांग्लादेश के साथ सड़क और रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत हो रही है। जल्द ही अगरतला से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी शुरू हो जाएगी। त्रिपुरा दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनने की ओर अग्रसर है। और अभी मुख्यमंत्री जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की चर्चा भी कर रहे थे। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को होगा, त्रिपुरा के नौजवानों को होगा, यहां के लोगों को होगा। साथियों, त्रिपुरा पर मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद है। भाजपा सरकार त्रिपुरा की ताकत को एक और त्रिशक्ति से बढ़ा रही है। इसमें पहली शक्ति है आवास। त्रिपुरा के लोगों को पक्का घर। दूसरी शक्ति है आरोग्य। त्रिपुरा के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं। और तीसरी शक्ति है आमदनी। त्रिपुरा के लोगों को आय में वृद्धि। आवास, आरोग्य और आय की ये त्रिशक्ति त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बना रही है। मेरे गरीब भाई बहन, मेरी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, मेरे किसान भाई बहन, हमारे श्रमिक भाई बहन, सभी को बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार की स्त्री शक्ति का लाभ लगातार मिलता रहा है। साथियों, त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ने यहां के लोगों का जीवन बदल दिया है। वो गरीब जो कभी सोच तक नहीं सकते थे, पीढ़ियां बीत गई, पक्का घर कभी मिला नहीं, उन्हें भी पीएम आवास योजना का पक्का घर मिल रहा है। त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने बीते 5 साल में करीब करीब 3 लाख पक्के घर बनाकर गरीब को दिए हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए ना, वो जब ये आंकड़ा सुनेंगे तो वो सोचते रह जाएंगे, त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य और इतने कम समय में 3 लाख परिवारों को पक्का घर, इससे बड़ी सरकार की तेज गति क्या हो सकती है, डबल इंजन की ताकत क्या हो सकती है। और अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग भी मानूं तो 10 से 12 लाख लोगों का सीधे सीधे पीएम आवास योजना का लाभ हुआ है। उनकी जिंदगी में
एक नई आशा का संचार हुआ है। त्रिपुरा की 40 लाख की आबादी को देखते हुए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये है भाजपा सरकार के काम करने का तरीका। ये है डबल इंजन की सरकार के काम करने के परिणाम। जो लोग झूठ बोलकर, साजिशें रचकर भाजपा सरकार को हटाने के सपने देख रहे हैं, उनके सामने ये लाखों लोग भाजपा का सुरक्षा कवच बन करके आज दीवार बन करके खड़े हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं। साथियों, त्रिपुरा के लोगों ने लेफ्ट और कांग्रेस के बरसों के कुशासन में एक बहुत बड़ी पीड़ा भुगती है। ये पीड़ा थी स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी। घर में कोई बीमार हो जाए तो यहां के लोगों के पास इलाज के लिए ना तो अच्छे अस्पताल थे, इलाज के पैसे भी उनकी बहुत बड़ी चिंता थे। भाजपा सरकार को आपकी इस चिंता का ध्यान था, इसलिए ही हम 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए। और मुझे खुशी है, त्रिपुरा के करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आयुष्मान योजना ने मदद की और उनकी जिंदगी बचाने का पुण्य प्राप्त किया है। आप कल्पना करिए, अगर आयुष्मान योजना न होती, अगर भाजपा सरकार ना होती, तो क्या ये सुविधाएं त्रिपुरा के गांवों में मेरे गरीब के घर तक पहुंचती क्या? जनजातीय समुदाय के घर तक पहुंचती क्या? हमारी माताओं बहनों को बीमारी से मुक्ति मिलती क्या? आयुष्मान योजना के साथ साथ हमने त्रिपुरा में अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया है। हाल में ही पहला, आजादी के इतने सालों के बाद पहला डेंटल कॉलेज भी त्रिपुरा को देने का सौभाग्य हमें मिला है। कांग्रेस और लेफ्ट गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानते हैं। वो गरीब को कभी किसी चिंता से मुक्त नहीं कर सकते। साथियों, भाजपा सरकार की कोशिश सिर्फ आपको बेहतर इलाज की सुविधा देने की नहीं, लेकिन